Greeting dear students. I hope the anatomy of human excretory system is clear to everyone. In this module, we will discuss about the excretion in human being, means the detail of excretion in human being means how urine is formed in human being. कि human being के अंदर किडनी की जो बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, उसके अंदर यूरिन बनता कैसे है. So there are generally three steps of urine formation. First is glomerular filtration, also called ultrafiltration. Second is tubular reabsorption. The third is tubular secretion, and the reabsorption is also called selective reabsorption. In few of the books you will directly see first step is filtration, second is reabsorption, third is secretion. This is the specific glomerular filtration, ultrafiltration, tubular reabsorption, tubular secretion. So before going into this, how urine is formed, first we will discuss about the nephron. So the first part of this is the simplified diagram of nephron. When you see in your book, the diagram will be slightly complex. So I tried to make the diagram in a simplified manner, and I have avoided the blood capillaries network around the nephron. की जो blood capillaries का network होता है इसके चारों तरफ, I haven't drawn this because it will complex the diagram. So what is the nephron? So the first part of the nephron, this cup shape is called Bowman's capsule. कि जो हमारी आर्टरीज लेके आएंगी, ब्लड लेके आएंगी और यहाँ पे आके फिल्टर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड दिस Bowman capsule there will be a complex network of capillaries containing blood which need to be filtered. कि यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, ड्रॉन ए सिंप्लीफाइड मैनर. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा कैपिलरीज का जिसके अंदर से ब्लड आएगा और जिसमें ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. एंड द फर्स्ट पार्ट इज Bowman capsule. आफ्टर दिस Bowman capsule, दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तो Bowman कैप्सूल के बाद एक क्या होता है, कन्वोलेटेड फॉर्म में होता है. कन्वोलेटेड मतलब ट्यूब है वो इस तरह से जिगजैग मैनर में एक दूसरे के ऊपर कन्वोलेटेड है. तो ये फर्स्ट पार्ट होता है Bowman कैप्सूल के बाद, जहां पे ट्यूब जो है वो कन्वोलेटेड फॉर्म में होती है. इट इज स्लाइटली मोर convoluted as in comparison to as shown here because this is the simplified way. So proximal means the first part है जो Bowman capsule का ट्यूब्स का जो यहाँ पे convoluted है, that is why it is called proximal convoluted tubule. Generally they are collectively called tubules सभी को, but ये पहला पार्ट है जो Bowman capsule के साथ connected है, that is why it is called PCT, proximal convoluted tubule. Then it will move forward and then there will be a loop. This loop of tubule is called loop of Henle based upon the name of scientist. Next is it will move upward. तो इस Bowman capsule से दूर हो गया तो distal, और ये convoluted form में है, so that is why it is called distal convoluted tubule. Next, this distal convoluted tubule will end into the collecting duct, and these branching are showing कि और भी बहुत सारे नेफ्रॉन हैं जिनकी branches क्या है, यहाँ पे आके distal convoluted tubule इस collecting duct के ऊपर कनेक्ट हो रही है. So these are the basic units of nephron and how these basic unit will work. तो ये जो यहाँ पे मैंने कैपिलरीज बनाई हैं, तो ये आगे भी जाती हैं और ये चारों तरफ इसको कवर करके रखती हैं पूरी तरह से थ्रू आउट अप टू दिस एंड, ताकि वो जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब करे. और जब यहाँ से वो आएंगी और वापस कहाँ पे चली जाएंगी, हार्ट के पास. मीन ब्लड फिल्टर होने के लिए आएगा यहाँ पे वेन्स के थ्रू, ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद सॉरी नॉट विद दी वेन्स के थ्रू नहीं आएगा, आर्टरी के थ्रू आएगा, और यहाँ पे आके फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद फिर वो किस में चला जाएगा, अल्टीमेटली वेन के थ्रू. और वेन किसके पास लेके जाएंगे उसको, फिल्टर्ड जो ब्लड होगा वेन के थ्रू किसके पास चला जाएगा, हार्ट के पास. फिर वो हार्ट आगे भेज देगा लंग्स के पास उस काम के लिए. दैट इज द डिफरेंट टॉपिक. सो हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन. सो फर्स्ट the different parts of nephron should be clear to everyone. Bowman capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and this is called collecting duct. Duct क्या है कि एक पाइप की तरह है जो अलग अलग नेफ्रॉन से जो यूरिन बनेगा उसको कलेक्ट करेगा और जाके उसको यूरेटर के साथ कनेक्ट करके ब्लैडर में स्टोर कर देगा. So what is the first part of urine formation? Here you can see first you should aware about the composition of urine. So urine is 95% water प्लस 5% सॉलिड वेस्ट. की बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूरिन के अंदर डिजोल्व रहती है. यूरिया है, यूरिक एसिड है, बाइल पिगमेंट है, आयन है, आयन के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो एक्सेस में है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, तो और भी बहुत सारी चीजें इनके अंदर क्या रहती हैं, डिजोल्व रहती हैं.
सो हाउ यूरिन इज फॉर्म? तो सबसे पहले तो क्या आएगा, ब्लड आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोमेरुलस, और यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होगा इनसाइड द बोमेन कैप्सूल. तो इन द फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? कि ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे मैक्सिमम दे विल बी फिल्टर्ड. कि मान लो ब्लड आया और ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट थे सारे के सारे उसमें से मैक्सिमम, नॉट दिस सारे के सारे, मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ ब्लड विल बी filtered out. For example, water, the waste products which are present in the blood, urea, calcium ion, potassium, sodium chloride, and number of other products, all will be filtered in this glomerular. और यहाँ पे क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज जो होती है उनके अंदर जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ये क्या होता है, फिल्टर होता है. और फिल्टर होने के बाद वो किसके अंदर आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर. तो इसलिए जहां यहाँ पे जो यूरिन बनता है उसके अंदर मैक्सिमम हमारे ब्लड में से पानी निकल चुका है, मैक्सिमम काम की चीजें भी निकल चुकी होती हैं फिल्टर होके, एंड दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट. तो मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड. इसके बाद क्या होता है कि अब हम इतना पानी तो हमारे पास होता नहीं है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो मैक्सिमम जो वाटर है वो यहाँ पे फिल्टर हो चुका होता है, यूरिन में जा चुका होता है. तो बॉडी का मैकेनिज्म क्या होता है, एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो ये क्या करता है, किडनी को सिग्नल भेजता है कि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि आप इतनी सारी चीजों को बॉडी में से रिमूव कर दें. तो बॉडी क्या करती है, स्पेसिफिकली किडनी क्या करती है, ड्यू टू दिस हार्मोन इट विल रीएब्सॉर्ब द कंस्टिट्यूएंट्स विच वर प्रेजेंट इन द यूरिन. कि यहाँ पहले स्टेप के अंदर जो यूरिन बना था मैक्सिमम कंपोनेंट फिल्टर हो गए थे वेस्ट के साथ में, अब यहाँ पे इकट्ठे हो गए. तो ये जो ट्यूब्यूलर रीजन होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो काम की चीजें भी फर्स्ट स्टेप के अंदर फिल्टर हो चुकी थी, पानी है, आयंस है, उनको वो क्या करता है, सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर लेता है. बट बी केयरफुल, इट डू नॉट रीएब्सॉर्ब दी वेस्ट प्रोडक्ट. कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिया वगैरह है उसको रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा. तो जो कन्वोलेटेड ट्यूबुलर रीजन है उसके अंदर वो क्या कर लेता है, रीएब्सॉर्ब कर लेता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कैल्शियम आयन, वाटर, जो काम की चीजें हैं बॉडी के लिए. So that is why under the influence of this hormone the kidney or this tubular region will reabsorb. तो यहाँ पे क्या होती है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है उसके अंदर वापस चला जाता है वो. नेक्स्ट स्टेप इज, so 99% of filtrate is reabsorbed by the tubules, and for this they will use the energy by the active and passive transport. And all of you are aware about the active passive transport. So active में एनर्जी लगती है, पैसिव में नहीं लगती. पैसिव लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस. सो 99% जो है वो क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा. उसके बाद क्या होता है, इसी ट्यूबुलर रीजन के अंदर आगे क्या होता है कि कुछ एक आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, दे विल बी सिक्रेटेड बैक इनटू द यूरिन. तो यूरिन तो इसके अंदर चल रहा है, तो जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो क्या करती हैं, जो कुछ एक आयंस को, सब्सटेंसेस लाइक एच आयन, पोटेशियम आयन आर एक्सेट्रा इनटू द फिल्ट्रेट, वो वापस चले जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, मतलब जो यूरिन है, एंड इट विल हेल्प टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस. पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेगा कि ज्यादा आयन ना हो जाए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन एक टर्म होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बॉडी के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो उसको मेंटेन करने के लिए इन आयंस को वापस क्या करना पड़ता है, सिक्रीट करना पड़ता है. बी केयरफुल एक्सेस जो ज्यादा में है, ठीक है. सो after that urine which is formed, which is called filtrate, is will be moved there in the collecting duct till the reabsorption continue. क्योंकि पानी ज्यादा नहीं जाना चाहिए बॉडी से बाहर, because it will lead to deficiency. So how much urine is produced, how much it will be reabsorbed, everything will depend upon the condition. तो condition मतलब जैसे in case of winter the urine formation is more. Why? Because क्योंकि इवेपोरेशन से, स्वेटिंग के थ्रू जो वाटर है उतना इवेपोरेट होता नहीं है. सो एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन. सो आई एम अगेन कंक्लूडिंग हाउ यूरिन इज फॉर्म. यू कैन, इट इज क्लियरली मेंशन इन द डायग्राम. फर्स्ट स्टेप इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस. बोमेन कैप्सूल के अंदर वो फिल्टर होता है, क्योंकि कैपिलरीज हैं तो मैक्सिमम चीजें जो हैं वो उसमें से क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं. फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, ट्यूब्यूल के अंदर. और इस ट्यूबुलर रीजन के अंदर क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मैक्सिमम चीजें फिल्टर हो चुकी थी, तो जो काम की चीजें हैं वो भी चली जाती हैं, तो उसको वापस रीएब्सॉर्ब करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. तो सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में जो काम की चीजें हैं जो एक्सेस में नहीं है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कैल्शियम, उसको रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट लास्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन. The ions, H ion, potassium ion, that will be secreted so it can maintain the ionic balance in the body, and that filtrate will be collected in the collecting duct.
और कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे दूसरे नेफ्रॉन भी अटैच होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे वो इकट्ठा होता रहता है, रीएब्जॉर्ब होता रहता है वाटर कंटेंट उसमें से, फिर अल्टीमेटली सभी कलेक्टिंग डक्ट, सभी नेफ्रॉन्स का जो फिल्ट्रेट होगा दैट विल बी कलेक्टेड एंड मूव टुवर्ड्स द ब्लैडर पार्ट. So that's how urine is formed in the human being. The three steps are glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So I hope this what are the different parts of nephron and how urine is formed in this nephron. This is the simplified version of nephron diagram of nephron, so that it can be easily understood. But exactly the blood capillaries network is always around this. So I hope the urine formation and the nephron is clear to everyone. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. So thank you dear students.